تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ ہم عربی ہیں، عقا نے کہا، عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو، فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہران اور عقا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مہران بن بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں عقا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہران بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عقا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا، ایک سالار نے کہا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ مہران نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو ان بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ سالار نے کہا، کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں، یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ مہران نے کہا، کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیزی سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ کر آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرا کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر حلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی تھی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں ہوں عقا بن ابی عقا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا۔ تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسرا کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا۔ خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔
रब्बे काबा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आका को जिंदा पकड़ूंगा, फिर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला 2 फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने स्याह पहाड़ की मानंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर या कहीं रूपोश है और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर दे। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुअर्रिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे, और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुत्तमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी, परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सालार आसिम बिन अदी और दूसरे पहलू से सालार अदी बिन हातिम ने बदवी कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। अका बिन अबी अका अपनी लश्कर के कल्ब में था और उसकी नजर मुसलमानों के कल्ब पर थी, जहां खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कल्ब के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गुत्थम गुत्था हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छुप गए थे। इस गर्द से घोड़ों के हिनहिनाने, तलवारों और ढालों के टकराने की मुहीब आवाजें और जख्मियों की करबनाक सदाएं उठ रही थी। एक कयामत थी जो गर्द के अंदर बपा थी। पहलुओं के दोनों सालारों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बदवी कबीले इस खुशफहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोशो खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे, बदवी फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझा लिया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही न चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अका पर थी, जो मुअर्रिख बलाज़री और तिबरी के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसे ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अका बिन अका ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि आका को जिंदा पकड़ना है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया। आका के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों से आका और उसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। आका के मुहाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। आका उनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बदवी कबाइलियों के पांव उखाड़ दिए। आका भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने आ आका, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ललकारा। तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमंद फेंक कर आका को पकड़ लिया, लेकिन मौर्रिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि आका खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। आका को तारीख ने माहिर जंगजू और तेगजन करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और आका के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने आका का हर बार बचाया और मौके की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला आका को घोड़े से गिरा दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। आका अभी संभल ही रहा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार की नोक आका के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के 3-4 मुहाफिजों ने बर्चियों की अन्नियां आका के जिस्म के साथ लगा दी। आका ने हथियार डाल दिए। उसके कई मुहाफिज हलाक और जख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फौरन ये खबर बदवी कबाइल तक पहुंच गई कि उनका सरदार आला हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि आका मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और अदी दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही कि आका मारा या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बदवी 1-1, 2-2 ऐनुत्तमर की तरफ भागे जा रहे थे। आका खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। उसे तवक्को थी कि ऐनुत्तमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पाबा-रिकाब होगी और आ ही रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालारों और कमांडारों को पैगाम दो कि बदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह न समझें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माले गनीमत की तरफ देखना भी नहीं, एक और फौज आ रही है, वो ताज़ा दम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि मेहरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी।
या वो ऐनुत्तमर में कला बंद होकर लड़ेगी। उस फौज पर नजर रखने के लिए मुसन्ना बिन हारिसा अपने छापामार दस्ते के साथ ऐनुत्तमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही। फिर उसका ये पैगाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचा कि आका के कबाइली खौफो हिरास की हालत में भाग भाग कर ऐनुत्तमर में पनाह ले रहे हैं। मुसन्ना बिन हारिसा के छापामार भागने वाले बदवी कबीलों का ताक़ुब करके उन्हें मार रहे थे। जब आका के पहले चंद एक आदमी ऐनुत्तमर में दाखिल हुए तो उन्हें मेहरान के पास ले गए। तुम मौत से भाग कर आए, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे कबीले हमारी फौज के बगैर नहीं लड़ सकेंगे। हम अरबी हैं, आका ने कहा। अरबों से लड़ना सिर्फ हम जानते हैं। अरब के इन मुसलमानों से हमें लड़ने दो। फारसियों ने इनके मुकाबले में आकर देख लिया है। मशहूर मौर्रिख तिबरी ने मेहरान और आका की ये गुफ्तगू उन्हीं के अल्फाज में अपनी तारीख में शामिल की है। मैं तस्लीम करता हूँ, मेहरान बिन बहराम ने कहा। तुम्हारी बहादुरी को मैं तस्लीम करता हूँ आका। जिस तरह हम अजमियों के खिलाफ लड़ने के माहिर हैं, इसी तरह तुम अरबों के खिलाफ लड़ने में महारत रखते हो। तुम इन अरबी मुसलमानों को काट फेंकने के लिए आगे चले जाओ। मेरी फौज तुम्हारे करीब ही कहीं मौजूद होगी। जो ही जरूरत पड़ी हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। रात गुजर गई। सुबह फारस की फौज के 2 सालार मेहरान बिन बहराम के पास गए। रात को हमने आपकी और आका की बातचीत में दखल देना मुनासिब न समझा। एक सालार ने कहा। हमने बोलने की जरूरत इसलिए भी न समझी कि रात की ये बातचीत नशे की हालत में हो रही थी। मैं पूरी तरह होश में था। मेहरान ने कहा। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपने जो इन बदवी कबीलों को अहमियत दी है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं। सालार ने कहा। क्यों अच्छी नहीं? इससे इन कबीलों को ये तासुर मिला है कि हम मुसलमानों से डरते हैं। सालार ने जवाब दिया। या ये कि हम कमजोर हैं। ये लोग इतनी अहमियत के काबिल नहीं। अगर बदवी कबीलों ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी, दूसरे सालार ने कहा, तो कहा जाएगा कि ये फतह उन कबीलों की है, और अगर ये ना होते तो हम एक और शिकस्त से 2-4 होते। मैंने उन्हें जो अहमियत दी है, ये आखिर तुम्हें मिलेगी। मेहरान ने कहा। क्या तुम तस्लीम नहीं करते कि हम पर हमला करने वो शख्स आ रहा है जिसने हमारे नामवर सालारों को मौत के घाट उतार दिया है और उसने फारस की शहनशाही की बुनियादें हिला डाली हैं? मैं इस एतराफ से नहीं शर्माऊंगा कि तुम खालिद का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कुछ सोचकर इन बदवी कबीलों को आगे जाने की इजाजत दी है। अगर उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो ये तुम्हारी फतह होगी। ये बदवी कबीले हमारी रियाया हैं। अगर ये मुसलमानों को शिकस्त ना दे सके और पसपा हो गए तो हम मुसलमानों पर इस हालत में हमला करेंगे कि वो थक कर चूर हो चुके होंगे और हमारी फौज ताजा दम होगी। दोनों सालारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर रौनक आ गई थी। अपने हाकिम की ये चाल उन्हें बहुत पसंद आई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुजाहिदीन के लश्कर को लेकर ऐनुत्तमर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दरिया फुरात अबूर किया और बड़ी तेजी से दरिया के किनारे पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने देखभाल के लिए जो आदमी आगे भेज रखे थे वो अपनी इत्तलाएं कासिदों के जरिए भेज रहे थे। अंबार में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने एक नाइब सालार ज़बरकान बिन बद्र को छोड़कर आए थे। ऐनुत्तमर 10 मील दूर रह गया था जब जासूस और देखभाल करने वाले दूसरे आदमी पीछे आ गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला दी कि जरा ही आगे एक बहुत बड़ा लश्कर पड़ाव डाले हुए है और ये लश्कर फारस का नहीं बल्कि बदवी कबीलों का है। इस लश्कर का सालार आला अका बिन अका और उसका नायब हज़ेल है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्कर को रोक लिया और खुद आगे देखने गए। उन्होंने छुप कर देखा। उन्हें किसरा की फौज कहीं भी नजर नहीं आई। ये लश्कर बदवी कबीलों का था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर अभी कूच की तरतीब में था, जो दरअसल तरतीब नहीं थी। मंजिल अभी 10 मील दूर थी। अभी लश्कर काफिले की सूरत में चला आ रहा था। ऐनुत्तमर पहुंचकर शहर को मुहासरे में लेना था, लेकिन रास्ते में एक इंसानी दीवार आ गई जो मुसलमानों के लिए गैर मुतवक्की थी। मौरखों ने उन कबीलों की तादाद नहीं लिखी सिवाय इसके कि वो तादाद में मदीना के मुजाहिदीन से खासे ज्यादा थे। ऐनुत्तमर की अपनी फौज इस तादाद के अलावा थी। इस तरह मुसलमानों का मुकाबला कम से कम 3 गुना ताकतवर दुश्मन से था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह वो खुद कल्ब में रहे और अपने दोनों तजर्बाकार सालारों आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम को दाएं और बाएं पहलुओं में रखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम सालारों को अपने पास बुलाया। हमारी तरतीब वही है जो आमने सामने के हर मार्के में हुआ करती है, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालारों से कहा, लेकिन लड़ने का तरीका मुख्तलिफ होगा। अब कल्ब से हमला नहीं होगा। मेरा इशारा मिलते ही दोनों पहलू दुश्मन के पहलुओं पर हल्ला बोल दें और वहां दुश्मन को पूरी तरह उलझा लें। थोड़ी देर बाद इस तरह पीछे हटें कि दुश्मन को ये तासुर मिले कि तुम पसपा हो रहे हो। थोड़ा सा पीछे आकर फिर आगे बढ़ो और फिर पीछे हटो। इस तरह दुश्मन के पहलुओं को आपस में उलझाए रखना कि अपने कल्ब की उन्हें होश न रहे। मैं सीधा दुश्मन के कल्ब पर हमला करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों इस कोशिश में रहना कि दुश्मन के पहलुओं से उसके कल्ब को मदद न मिल सके। वलीद के बेटे, दुश्मन की तरफ से ललकार सुनाई थी। आंखें खोल, देख तेरी मौत तुझे किसके सामने ले आई है।
मैं हूँ अका बिन अबी अका, वलीद का बेटा देख चुका है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़े पर सवार होकर और रिकाबों में खड़े होकर ललकार का जवाब दिया, तेरी मकरू आवाज सुने बगैर देख लिया है। क्या किसरा के सालारों ने महल में नाचना और गाना शुरू कर दिया है कि उनकी लड़ाई तुम लड़ने आ गए हो? इब्ने वलीद, अका की ललकार बुलंद हुई, क्या तू जिंदा वापस जाने का ख्वाहिशमंद नहीं? मैं जिंदा वापस जाऊंगा, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जोर से कहा। खुदा की कसम, तेरे सर को तेरे जिस्म से अलग करके जाऊंगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सालारों की तरफ मुतवज्जे हुए। रब्बे काबा की कसम, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं अका को जिंदा पकड़ूंगा, फिर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला 2 फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने स्याह पहाड़ की मानंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर या कहीं रूपोश है और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर दे। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मुअर्रिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुत्तमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी, परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सालार आसिम बिन अदी और दूसरे पहलू से सालार अदी बिन हातिम ने बदवी कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। अका बिन अबी अका अपनी लश्कर के कल्ब में था और उसकी नजर मुसलमानों के कल्ब पर थी, जहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कल्ब के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गुत्थम गुत्था हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छुप गए थे। इस गर्द से घोड़ों के हिनहिनाने, तलवारों और ढालों के टकराने की मुहीब आवाजें और जख्मियों की करबनाक सदाएं उठ रही थी। एक कयामत थी जो गर्द के अंदर बपा थी। पहलुओं के दोनों सालारों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बदवी कबीले इस खुशफहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोशो खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे, बदवी फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझा लिया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही न चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अका पर थी, जो मुअर्रिख बलाजरी और तिबरी के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसे ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अका बिन अका ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अका को जिंदा पकड़ना है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया। अका के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों से अका और उसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। अका के मुहाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अका उनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बदवी कबाइलियों के पांव उखाड़ दिए। अका भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने आ अका, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे ललकारा, तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमंद फेंक कर अका को पकड़ लिया, लेकिन मौर्रिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि अका खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अका को तारीख ने माहिर जंगजू और तेगजन करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और अका के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने अका का हर वार बचाया और मौके की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला अका को घोड़े से गिरा दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अका अभी संभल ही रहा था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार की नोक अका के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के 3-4 मुहाफिजों ने बर्चियों की अन्नियां अका के जिस्म के साथ लगा दी। अका ने हथियार डाल दिए। उसके कई मुहाफिज हलाक और जख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फौरन ये खबर बदवी कबाइल तक पहुंच गई कि उनका सरदार आला हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि अका मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और अदी दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही कि अका मारा या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बदवी 1-1, 2-2 ऐनुत्तमर की तरफ भागे जा रहे थे। अका खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था।
उसे तवक्को थी कि ऐन तमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पाबा रिकाब होगी और आ ही रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालारों और कमांडारों को पैगाम दो कि बदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह न समझें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माले गनीमत की तरफ देखना भी नहीं, एक और फौज आ रही है, वो ताज़ा दम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि मेहरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी या वो ऐन तमर में कला बंद होकर लड़ेगी। उस फौज पर नजर रखने के लिए मुसन्ना बिन हारिसा अपने छापामार दस्ते के साथ ऐन तमर तक के इलाके में मौजूद और मुतहर्रिक था। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बार बार यही पैगाम भेजा था कि आतिश परस्तों की फौज कहीं भी नजर नहीं आ रही। फिर उसका ये पैगाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचा कि अका के कबायली खौफो हिरास की हालत में भाग भाग कर ऐन तमर में पनाह ले रहे हैं। मुसन्ना बिन हारिसा के छापा मार भागने वाले बदवी कबीलों का ताक़ुब करके उन्हें मार रहे थे। जब अका के पहले चंद एक आदमी ऐन तमर में दाखिल हुए तो उन्हें मेहरान के पास ले गए। तुम मौत से भाग कर आए हो? मेहरान ने उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ भी तुम्हारे लिए मौत है? उसने हुक्म दिया, ले जाओ इन बुज़दिलों को और इन्हें कत्ल कर दो। किस किस को कत्ल करोगे? एक बदवी ने पूछा। पहले अका को कत्ल करो, जिसने हथियार डालकर सारे लश्कर में बुज़दिली फैलाई। दूसरे ने कहा, मुसलमानों ने जिस तरह हमले किए उन्हें हमारे सरदार समझ ही न सके। एक और ने कहा, उन्होंने मैदान जंग की सूरत हाल ऐसे रंग में पेश की कि मेहरान घबरा गया। मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और जोशो खरोश को उन्होंने मुबालगे से बयान किया और बताया कि अपना जो लश्कर मुसलमानों के हाथों कटने से बच गया है शहर की तरफ भागा आ रहा है, तो क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम मुसलमानों को वहाँ ले जाकर काटें जहाँ उनका दम खत्म हो चुका हो? मेहरान बिन बहराम ने अपने सालारों से कहा, फिर वो पसपा होने के भी काबिल नहीं रहेंगे। क्या सोचकर आपने ये बात कही है? एक सालार ने कहा, इतना बड़ा शहर छोड़कर हम चले जाएंगे तो ये पसपाई होगी। ये कहेंगे कि आप पर मुसलमानों का खौफ तारी हो गया है और आप यहाँ से भागना चाहते हैं। जो मैं सोच सकता हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। मेहरान ने शाहाना रोब से कहा, मैं यहाँ का हाकिम हूँ, जाओ मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। सालार खामोशी से चले गए। वो सालार थे, शहर का दिफा उनकी जिम्मेदारी थी। वो मुसलमानों को शहर पेश करने की बजाय लड़कर मरना बेहतर समझते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि वो मेहरान का ये हुक्म नहीं मानेंगे, लेकिन मैदान जंग से भाग कर आने वाले बनी तगलब, निमर और अयाद के आदमी टोलियों में शहर के दरवाजे में दाखिल हो रहे थे। वो 10 मील की मुसाफत तय करके आए थे जो उन्होंने खौफ और भगदड़ की कैफियत में तय की थी। उनमें बाज जख्मी थे, काट दिया, सबको काट दिया। वो घबराहट के आलम में कह रहे थे, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, बड़े जबरदस्त हैं। अका बिन अबी अका मारा गया है। वो शहर पर खौफ तारी कर रहे थे। हज़ैल लापता है, दरवाजे बंद कर दो, बाज चिल्ला रहे थे, वो आ रहे हैं। मौरखों ने लिखा है कि जरतुश्त के पुजारियों पर पहले ही मुसलमानों की दहशत तारी थी। मुसलमानों ने उनके बड़े नामवर सालार मार डाले थे। अब ऐन तिमर वाले अपनी आंखों से देख रहे थे कि ये जंगजू कबीले किस हालत में वापस आ रहे हैं। देखते ही देखते इस शहर पर खौफो हिरास तारी हो गया। शहर में जो फौज थी उसकी जहनी हालत ऐसे कमजोर बुजदिल कुत्ते जैसी हो गई थी जो दुम पिछली टांगों में दबा लिया करता है। उनके सालारों ने जब अपनी फौज को इस जहनी कैफियत में देखा तो उन्हें शहर के हाकिम और सालार आला मेहरान के अगले हुक्म की जरूरत न पड़ी। उन्हें ये भी इत्तला मिली कि मेहरान खजाना मदाइन भिजवा रहा है और शहर के लोग भी अपने अम्वाल छुपा रहे थे या साथ लेकर शहर से निकल रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के फन्ने हरबो ज़रब का कमाल ये था कि उन्होंने मैदान जंग में तो दुश्मन को शिकस्त दी ही थी, दुश्मन को उन्होंने नफ्सियाती लिहाज से इतना कमजोर कर दिया था कि उसके लड़ने का जज्बा मजरूह हो गया था। आतिश परस्तों की नफ्सियाती कैफियत तो यूं हो गई थी कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का या मुसलमानों का नाम सुनकर ही वो पीछे देखने लगते थे कि कुमक आ रही है या नहीं, या पसपाई का रास्ता साफ है या नहीं। फिर वो वक्त जल्दी आ गया जब मैदान जंग में लाशें और बेहोश जख्मी रह गए और उन्हें कुचलने के लिए वो घोड़े रह गए जो सवारों के बगैर बेलगाम दौड़ते फिर रहे थे। बदवी कबीले अपने सरदारों के बगैर ऐन तिमर जा पहुंचे और शहर के दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने शहर में वाबेला वपा किया कि मेहरान की फौज वादे के मुताबिक उनकी फौज की मदद के लिए नहीं आई, लेकिन वहाँ उनका वाबेला सुनने वाला कोई न था। खौफो हिरास के मारे हुए शहरी थे जो भाग नहीं सकते थे। मेहरान बिन बहराम अपनी फौज समेत शहर से जा चुका था। वो फौज को मदाइन लेकर जा रहा था। वो अका और हज़ेल और दूसरे कबायली सरदारों को कोस रहा था। दुश्मन का ताक़ुब करो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सिपाह को हुक्म दिया, जख्मियों को संभालने के लिए कुछ आदमी यहीं रहने दो और बहुत तेजी से ऐन तिमर का मुहासरा कर लो। ऐन उस वक्त मुसन्ना बिन हारिसा घोड़ा सरपट दौड़ाता आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास घोड़ा रोक कर उतरा। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगीर हो गया।
वलीद के बेटे मुसन्ना ने कहा, कसम रब्बुल आलमीन की, दुश्मन ऐनुत्तिमर से भाग गया है, क्या तेरा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। यूं कह के दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया है। मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि उसने जो जासूस ऐनुत्तिमर के इर्द गिर्द भेज रखे थे, उन्होंने इत्तला दी है कि फारस की जो फौज शहर में थी, शहर से निकल गई है। क्या तू नहीं समझ सकता कि ये फौज हमारे अक़ब पर उस वक्त हमला करेगी जब हम ऐनुत्तिमर को मुहासरे में लिए हुए होंगे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, मेहरान अपनी फौज के साथ जा चुका है। अगर वो फौज यहाँ कहीं छुपी हुई होती तो मेरे छापामार उसे चैन से न बैठने देते। आगे बढ़ और अपनी आंखों से देख, ऐनुत्तिमर तेरे कदमों में पड़ा है। ये खबर जब मुजाहिदीन के लश्कर को मिली तो उनके जिस्म जो थकन से टूट रहे थे तरोताजा हो गए। उन्होंने फतह नुसरत के नारों की गर्ज में ऐनुत्तिमर तक के 10 मील तय कर लिए। मुसन्ना के जो आदमी पहले ही वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शहर के तमाम दरवाजे बंद हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से शहर का मुहासरा कर लिया गया। बदवी, ईसाई और उनके दीगर साथी जो शहर में पनाह लेने आए थे, मुकाबले पर उतर आए। उन्होंने शहर पनाह के ऊपर जाकर मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। अक़ा बिन अबी अक़ा और तमाम जंगी कैदियों को आगे लाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया। जरा सी देर में तमाम बदवी कैदियों को सामने ले आए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अक़ा को बाजुओं से पकड़ा और उसे इतनी आगे ले गए जहां वो शहर पनाह से आने वाले तीरों की जद में थे। ये है तुम्हारा सरदार। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा। तुम इसे बहादुरों का बहादुर समझते थे, इसी ने तुम्हारी दोस्ती फारस वालों से कराई थी। कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अक़ा को आगे करके कहा, इससे पूछो मेहरान अपनी फौज को बचाकर कहाँ ले गया है। फिर बेशुमार कैदियों को आगे कर दिया गया। ये हैं तुम्हारे भाई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, चलाओ तीर, सब इनके सीनों में उतरेंगे। ये खबर किसी तरह शहर में फैल गई कि किले के बाहर मुसलमान बनी तगलब और दीगर कबीलों के कैदियों को लाए हैं। इन कैदियों में से कई एक के बीवी बच्चे और लवाहिकीन शहर में थे। उनकी बस्तियां तो कहीं और थीं, लेकिन उनकी सलामती के लिए उन्हें ऐनुत्तिमर में ले आए थे। जंग की सूरत में वो उन्हें अपनी बस्तियों में महफूज नहीं समझते थे। इन औरतों और बच्चों को जब पता चला कि उनके कबीलों के कैदी बाहर आए हैं, तो माएं अपने बच्चों को उठाए शहर की दीवार पर आ गईं। मैदान जंग में जाने वालों में से जो वापस नहीं आए थे, उनकी बीवियां, बहनें, माएं और बेटियां इस उम्मीद पर दीवार पर आई थीं कि उनके आदमी कैदियों में होंगे। उन औरतों ने दीवार के ऊपर हंगामा बपा कर दिया। वो अपने आदमियों को पुकार रही थीं। जिन्हें अपने आदमी कैदियों में नजर नहीं आ रहे थे, वो आहोजारी कर रही थीं। तीरंदाज उन्हें पीछे हटा रहे थे, मगर औरतें पीछे नहीं हट रही थीं। हम तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं देंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से उनके एक मुहाफिज ने बुलंद आवाज से कहा, हथियार डाल दो और दरवाजे खोल दो। अगर हमारे मुकाबले में तुम हार गए और दरवाजों में हम खुद दाखिल हुए तो तुम सबका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपनी 2 शर्तों पर दरवाजा खोलने पर आमादा हैं। दीवार के ऊपर से आवाज आई, तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से जवाब दिया गया, हथियार डाल दो, दरवाजे खोल दो, तुम्हारी सलामती इसी में है। बनी तगलब और उनके इत्तेहादी कबीले जानते थे कि उनकी सलामती इसी में है कि हथियार डाल दें और मुसलमानों से रहम की दरखास्त करें। चुनाचे उन्होंने दरवाजे खोल दिए और मुसलमान शहर में दाखिल हुए। उस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि मुसलमानों ने किसी शहरी को परेशान नहीं किया, अलबत्ता मुसलमानों के खिलाफ जो बदवी लड़े थे उन सबको कैदी बना लिया गया। ये उन कैदियों के लवाहिकीन पर मुनहसर था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकर्रर किया हुआ फिदिया अदा करके अपने कैदियों को रिहा करा लें। तमाम शहर की तलाशी ली गई। शहर में एक इबादतगाह या दर्सगाह थी जिसमें पादरी बनने की तालीम दी जाती थी। उस वक्त 40 नौ उम्र लड़के ज़ेरे तालीम थे। उन सबको पकड़ लिया गया। उनमें से अक्सर ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था और उनमें से एक को तारीख़ इस्लाम की एक नामवर शख्सियत का बाप होने का शर्फ हासिल हुआ। उस लड़के का नाम नसीर था। उसने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान औरत के साथ शादी की जिसने मूसा बिन नसीर को जन्म दिया। ये मूसा बिन नसीर शिमाली अफ्रीका के अमीर मुकर्रर हुए। उन्होंने ही तारिक बिन ज़ियाद को उंदलुस फतह करने को भेजा था। 2-3 मुतासिब मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनी तगलब, नमर और अय्याद के उन तमाम आदमियों को कत्ल कर दिया जो उनके खिलाफ लड़े थे। ये एक मफरूजा है जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बदनाम करने के लिए घड़ा गया था। मौरखों की अक्सरियत ने ऐसे कत्लेआम का हल्का सा भी इशारा नहीं दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुताद्दिद तारीखों के हवाले से लिखा है कि अक़ा बिन अबी अक़ा को खुले मैदान में लाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना अहद पूरा करते हुए उसका सर तन
गर्दन से काट डाला। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया था कि बदवी गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दें तो वो बड़े बुरे अंजाम से महफूज रहेंगे। दुश्मन ने मुसलमानों की शराइत पर हथियार डाले थे, उनके कत्लेआम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐनुत्तिमर की फतह के बाद खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहला काम ये किया कि अंबार और ऐनुत्तिमर का माल गनीमत इकट्ठा करके मुजाहिदीन में तकसीम किया और खिलाफत का हिस्सा अलग करके वलीद बिन उक़बा के सपुर्द किया कि वो मदीना अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश करें। उन्होंने अमीरुल मुमिनीन के लिए एक पैगाम भी भेजा। वलीद बिन उक़बा ने मदीना पहुंचकर अमीरुल मुमिनीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अंबार और ऐनुत्तमर की लड़ाई और फतह की तफसील सुनाई, माल गनीमत पेश किया, फिर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम दिया। पहले बताया जा चुका है कि खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हुक्म भेजा था कि वो अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम के इंतजार में हीरा में रुके रहें। उस वक्त अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु दौमतुल जंदल में लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाई की सूरत हाल अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अच्छी न थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और हीरा से कूच करके अंबार को मुहासरे में ले लिया, फतह पाई, फिर ऐनुत्तिमर का मार्का लड़ा और कामयाबी हासिल की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने पैगाम में कहा था कि वो हीरा में बैठे रहते तो फारस वालों को अपनी शिकस्तों से संभलने का और जवाबी हमले की तैयारी का मौका मिल जाता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश ये थी कि दुश्मन को कहीं भी कदम जमाने का और जवाबी वार करने का मौका न मिल सके। उन्होंने आतिश परस्तों की फौज को नफ्सियाती लिहाज से कमजोर कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु की हुक्म-उदूली तो की थी, लेकिन अमलन साबित कर दिया था कि ये हुक्म-उदूली कितनी जरूरी थी। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम अभी तक दौमतुल जंदल में फंसे हुए थे और उनकी कामयाबी की तवक्को बहुत कम थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मुनासिब समझा वो किया। खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद बिन उक़बा से कहा, उसने जो सोचा था वही हुआ। अयाज की तरफ से इत्तलाएं आ रही हैं, वो उम्मीद अफजा नहीं। दौमतुल जंदल पर हमारा कब्जा बहुत जरूरी था, लेकिन अब मुझे अयाज के मुताल्लिक तशवीश होने लगी है। इब्ने उक़बा, तुम ऐनुत्तिमर वापस ना जाओ, दौमतुल जंदल चले जाओ और वहाँ की सूरत हाल देखकर खालिद के पास जाओ और उसे कहो कि अयाज की मदद को पहुँचे। वलीद बिन उक़बा रवाना हो गए। अयाज रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम खुद भी परेशान थे। उनके साथ जो सालार थे वो उन्हें कह रहे थे कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए मदद की जरूरत है, वरना शिकस्त का खतरा साफ नजर आ रहा था। आखिर मुअर्रिख तिबरी और अबू यूसुफ की तहरीरों के मुताबिक अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक तहरीरी पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी मखदूश सूरत हाल और अपनी जरूरत लिखी। वलीद बिन उक़बा भी अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच गए। उनका जल्दी पहुंचना आसान न था। मदीना से दौमतुल जंदल का फासला 300 मील से कुछ कम था और ज्यादातर इलाका सहराई था। पहुंचना जल्द था। वलीद जब अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे तो वो जैसे होशो हवास में नहीं थे। उन्होंने आराम की ना सोची। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु की सूरत हाल देखी। मैंने खालिद को मदद के लिए कल ही पैगाम भेजा है। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम ने वलीद बिन उक़बा से कहा, मालूम नहीं वो खुद किस हाल में है, लेकिन मेरे लिए कोई और चारा नहीं, तुम देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, वलीद ने कहा। खालिद ने आतिश परस्तों की शहनशाही और उनकी जंगी ताकत को जड़ों से उखाड़ फेंका है। अमीरुल मुमिनीन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हारी जरूरत का जायजा लेकर उन्हें बताऊं, लेकिन तुम्हें फौरी मदद की जरूरत है। मैं मदीना जाने के बजाय ऐनुत्तिमर चला जाता हूँ। खालिद तुम्हारी मदद को आएगा। ये उस दौर की फर्ज शनासी और जज्बा था जिसमें खुशामद, दिखावे और कामचोरी का जरा सा भी अमल दखल न था। वलीद बिन उक़बा ने ये न सोचा कि वो वापस मदीना जाएं और खलीफा के हुक्म के मुताबिक उन्हें अपनी कारगुजारी बढ़ा चढ़ा कर सुनाएं और साथ ये कहें कि हुजूर, अयाज तो बड़ा नालायक सालार है, अगर उसकी जगह मैं होता तो यूं करता। मगर वलीद ने देखा कि सूरत हाल मखदूश है तो वो अपने हाकिम खुद बन गए और मदीना की बजाय ऐनुत्तिमर को घोड़ा दौड़ा दिया। उनके सामने पूरे 300 मील सहराई सफर था। इराक और शाम के सहरा इसी इलाके में मिलते और मुसाफिरों के लिए जान का खतरा बनते। वलीद ने अपने घोड़े पर, अपने आप पर, अपने 4 मुहाफिजों और उनके घोड़ों पर यह जुल्म किया कि कम से कम आराम के लिए कहीं रुके। वो मौसम गर्मी के उरूज का था। महीना अगस्त 633 ईस्वी का था। दौमतुल जंदल बहुत बड़ा तिजारती शहर था। दूर दराज ममालिक के ताजिर यहाँ आया करते थे। तिजारत के अलावा या तिजारत की बदौलत इस शहर को दौलत और ज़रो जवाहिरात का मरकज समझा जाता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर और इससे मिलने वाली शाहराहों की जोग्राफियाई पोजीशन देखकर इस पर फौजकशी की थी। ये मुहिम ग़ज़वा तबूक के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त दौमतुल जंदल का हाकिम और किलादार उकीदर बिन अब्दुल मलिक था। उसने मुसलमानों का मुकाबला बेजिगरी से किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उस मारके में शरीक थे। उन्होंने उकीदर को गैर मामूली शजाअत का मुजाहिरा करते हुए जिंदा पकड़ लिया था और उसकी सिपाह ने हथियार डाल दिए थे। उकीदर बिन अब्दुल मलिक ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की इताअत कबूल कर ली और वफादारी का हलफ उठाया। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इस तरह ये इतना बड़ा शहर मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के साथ ही इर्तदाद का फितना तूफान की तरह उठा था। उकीदर भी मदीना से मुनहरिफ हो गया और उसने इताअत और वफादारी के मुआहदे को अलग फेंक दिया। उसने दौमतुल जंदल को एक रियासत बना लिया जिसके बाशिंदे भी ईसाई थे और बुत परस्त भी। ईसाइयों का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला कल्ब था। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकीदर बिन अब्दुल मलिक की सरकूबी के लिए और उसे अपनी अताअत में लाने के लिए अयाज रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम को एक लश्कर देकर भेजा था। वहां जाकर अयाज रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनका लश्कर तो बहुत थोड़ा है और दुश्मन कई गुना ताकतवर है, लेकिन मदीना से तकरीबन 300 मील दूर आकर वापस चल पड़ना तो मुनासिब न था। दौमतुल जंदल की दीवार ऊंची और मजबूत थी। पूरा शहर बड़ा मजबूत किला था। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर का मुहासरा किया जो मुकम्मल न था। एक तरफ रास्ता खुला था। उकीदर की सिपाह की कुछ नफरी खाली तरफ से बाहर आती और मुसलमानों पर हमला करती। कुछ देर लड़ाई हुई और ये नफरी भागकर किले में चली जाती। उन हमलों के अलावा किले की दीवारों से मुसलमानों पर तीरों का मी बरसता रहता और इसके जवाब में मुसलमान तीरंदाज दीवारों पर तीर फेंकते रहते। उन्होंने किले के दरवाजों पर भी हल्ले बोले, मगर किले का दिफा तवक्को से ज्यादा मजबूत था। मुसलमानों के खिलाफ जंग का पांसा उस तरह पलट गया कि कबीला कल्ब के ईसाइयों ने अकब से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। वो मुसलमानों पर बढ़ बढ़कर हमले करते थे और मुसलमान जान की बाजी लगाकर हमलों को रोकते और पसपा करते थे। मुसलमानों की इस बेखौफी को देखकर ईसाइयों ने हमले कम कर दिए, मगर मुसलमानों को घेरे में रखा ताकि वो पसपा न हो सकें और रसद वगैरह की कमी से परेशान होकर हथियार डाल दें। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था कि एक जगह रास्ता खुला रखा और उसकी हिफाजत के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक थी। उनका जानी नुकसान खासा हो चुका था। जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। मुसलमान जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि शिकस्त उन्हीं की होगी। दिन पे दिन गुजरते जा रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐनुत तिमर को अपने इंतजाम में लाने के काम से फारिग हो चुके थे। उन्होंने उमाल मुकर्रर कर दिए। 2-4 दिनों में ही वहाँ के शहरियों को यकीन हो गया कि मुसलमान ना उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना रहे हैं, ना उनके हुकूक पामाल कर रहे हैं, ना उनकी औरतों पर बुरी नजर रखते हैं और उनके घर और अमवाल भी महफूज हैं। इसलिए वो इस्लामी हुकूमत के वफादार बन गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम का कासिद पहुंचा और उनका तहरीरी पैगाम दिया। अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु जिस मुसीबत में फंस गए थे वो लिखी थी, तफसील कासिद ने बयान की। दूसरे ही दिन वलीद बिन उक़बा पहुंच गए। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि एक घड़ी जो गुजरती है वो अयाज और उसके मुजाहिदीन को शिकस्त और मौत के करीब धकेल जाती है। शिकस्त? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की तारीख में शिकस्त का लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्या उकीदर बिन अब्दुल मलिक मुझे भूल गया है? क्या वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया है जिन्होंने उसे इताअत पर मजबूर किया था? क्या वो हमारे अल्लाह को भूल गया है जिसने हमें उस पर फतह अता की थी? तारीख शाहिद है कि बदले हैं तो इंसान बदले हैं, अल्लाह नहीं बदला। अल्लाह ने फतूहात को शिकस्तों में उस वक्त बदला था जब मुसलमान बदल गए थे और खुदा के बंदों के खुदा बन गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम को पैगाम का तहरीरी जवाब दिया। उस दौर में अरबों की तहरीरों का अंदाज शायराना हुआ करता था। मौर्रिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब मंजूम अंदाज का था। उन्होंने लिखा, मिन जानिब खालिद बिन वलीद बनाम अयाद बिन गनिम, मैं तेरे पास बहुत तेज पहुंच रहा हूँ। तेरे पास ऊंटनियां आ रही हैं जिन पर काले और जहरीले नाग सवार हैं। फौज के दस्ते हैं जिनके पीछे भी दस्ते, आगे भी दस्ते हैं। जरा सब्र करो, घोड़े हवा की रफ्तार से आ रहे हैं। उन पर तलवारें लहराने वाले शेर सवार हैं। दस्तों के पीछे दस्ते आ रहे हैं। पैगाम का जवाब कासिद को देकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे कहा कि वो जितनी तेजी से आया था उससे ज्यादा तेज दौमतुल जंदल पहुंचे और अयाद रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली दे। इसके साथ ही उन्होंने अपने एक नायब सालार अवेम बिन काहिल असलमी को बुलाया। इब्ने काहिल असलमी, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ? अल्लाह मुझे हर उस जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत और अक़ल अता फरमाए जो मुझे सौंपी जाए। अवीम ने कहा, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी इब्ने वलीद? ऐनुत तिमर। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इसका इंतजाम और इसकी हिफाजत। अंदर से बगावत उठ सकती है,
बाहर से हमला हो सकता है। मैं तुझे अपना नायब बनाकर दोमतुल जंदल जा रहा हूँ। अयाज बिन गनिम मुश्किल में है, अल्लाह तुझे सलामती अता करे। अवीम ने कहा, ऐनुत तिमर को अल्लाह की अमान में समझ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इब्तदा में जो सिपाह थी वो जानी नुकसान के अलावा इस वजह से भी कम हो गई कि हर मफ्तूहा जगह एक दो दस्ते छोड़ दिए गए थे। ऐनुत तिमर तक पहुँचते नफरी और कम हो गई थी। इस इलाके के मुसलमान बाशिंदों से नफरी बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। कुछ नौ मुस्लिम भी सिपाह में शामिल हो गए थे, लेकिन अभी उन पर पूरी तरह एतमाद नहीं किया जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दस्ते ऐनुत तिमर में छोड़े, 6000 सवार अपने साथ लिए और दोमतुल जंदल को रवाना हो गए। फासला 300 मील था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने 300 मील की ये सहराई मुसाफत सिर्फ 10 दिनों में तय कर ली। वो अभी रास्ते में थे कि जब उकीदर के आदमियों ने उस लश्कर को देख लिया। वो मुसाफिर होंगे। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने से पहले दोमतुल जंदल में इत्तला दी थी कि मुसलमानों का एक लश्कर आ रहा है। बाज़ मौर्रिखों ने यह भी लिखा है कि दोमतुल जंदल वालों को यह भी पता चल गया था कि इस इस्लामी लश्कर के सालार आला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु है। उस वक्त तक ईसाइयों के 3 बड़े कबीले बनु कल्ब, बनु बहरा और बनु गसान जंग में शरीक थे। उकीदर बिन अब्दुल मलिक को इत्तला मिली तो उसने बड़ी उजलत से ईसाइयों और बुत परस्तों के छोटे छोटे कबीलों को भी जंग में शरीक होने के लिए बुलवा भेजा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहुंचने तक उन छोटे कबीलों ने अपने आदमी भेजने शुरू कर दिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तूफान की मानिंद पहुंचे। मुजाहिदीन ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर पुरजोश नारे लगाने शुरू कर दिए। अयाज रज़ियल्लाहु अन्हु बिन गनिम के लश्कर ने ये नारे सुने तो सारे लश्कर ने नारे लगाए। उनके हारे हुए हौसले तरोताजा हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान जंग का जायजा लिया, फिर किले के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर किले की दीवारों का जायजा लिया और किले की दीवारों पर खड़े दुश्मन को देखा। दुश्मन की फौज के 2 हिस्से थे, एक का सालार आला उकीदर बिन अब्दुल मलिक और दूसरे का जोदी बिन रबिया था जो किले के बाहर था। किले के बाहर उनके छोटे छोटे कबीलों के आदमी भी जमा हो गए थे जो उकीदर के बुलावे पर अभी अभी आए थे। उनके लिए किले का कोई दरवाजा न खुला क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की आमद किले के लिए बड़ी खतरनाक थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक दहशत का दूसरा नाम था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन पर जो नफ्सियाती वार करते थे उसका असर मुस्तकिल होता था। ऐसा ही एक जख्म उकीदर बिन अब्दुल मलिक पहले ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों खा चुका था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो सोच रहे थे कि वो किले में किस तरह दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी दहशत किले के अंदर पहुंच चुकी थी। उकीदर ने ईसाई सरदारों को बुला रखा था और उन्हें कह रहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से टक्कर ना लें और सुलह कर लें। ईसाई सरदार उसका मशवरा नहीं मान रहे थे। मेरे दोस्तों, तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने उसके ये अल्फाज लिखे हैं, खालिद से जितना मैं वाकिफ हूँ उतना तुम नहीं हो। मैं नहीं बता सकता कि उसमें कैसी ताकत है। मैं इतना जानता हूँ कि किस्मत हर मैदान में उसके साथ होती है। मैदान जंग का और किलों की तस्खीर का जो कमाल उसमें है वो किसी और में नहीं। तुम सोच रहे होगे और वो तुम्हारे सर पर खड़ा होगा। खालिद के मुकाबले में जो कौम आती है, खा ताकतवर खा कमजोर, वो खालिद के हाथों पिट जाती है। मेरा मशवरा तस्लीम करो और खालिद से सुलह कर लो। ईसाइयों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकस्तें खाई थी। वो इंतकाम लेना चाहते थे। तुम उससे लड़ोगे तो हार जाओगे, उकीदर ने कहा। फिर वो तुम पर रहम नहीं करेगा। अगर लड़े बगैर सुलह कर लोगे तो वो तुम्हारी जान, तुम्हारी औरतों और तुम्हारे अमवाल की हिफाजत करेगा, मगर तुम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम उसकी चालें नहीं समझते। हम लड़े बगैर शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। ईसाई सरदारों ने मुत्तफ़क़ा फैसला दे दिया। फिर तुम मेरे बगैर लड़ो, उकीदर ने कहा। मैं इतना बड़ा शहर तबाह नहीं कराऊंगा। ईसाई सरदार लड़ने के इरादे से चले गए। उन्हें उकीदर के इरादों का इसके सिवा कुछ इल्म नहीं था कि वो लड़ना नहीं चाहता। रात का पिछला पहर था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का सालार आसिम बिन अम्र किले के उस तरफ गश्त पर था जिधर इलाका खाली था। उसे 4-5 आदमी किले से निकलकर उस खुले इलाके में आते दिखाई दिए। वो साए से लगते थे। आसिम बिन अम्र के साथ चंद एक मुहाफिज थे। उन्हें आसिम ने कहा कि उन आदमियों को घेरे में लेकर रोक लें। मुहाफिजों को मालूम था कि किस तरह बखेर कर घेरा डाला जाता है। वो आदमी खुद ही रुक गए। सालार आसिम उन तक पहुंचे। मैं दोमतुल जंदल का हाकिम उकीदर बिन अब्दुल मलिक हूँ। उनमें से एक ने कहा, अपने और अपने आदमियों के हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे खालिद के पास ले चलो। उकीदर ने अपनी तलवार एक मुहाफिज के हवाले करते हुए कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, खालिद के साथ सुलह की बात करूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता इब्ने अब्दुल मलिक। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खैमे में उसकी बात को सुनकर कहा, तू मेरा मुजरिम नहीं, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम है। तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदअहदी की थी। तूने इस्लाम कबूल किया, फिर इर्तदाद के सरदारों के साथ जा मिला। उकीदर ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पेश किया। ईसाई कबीलों से लाताल्लुक हो जाने का अहद किया। अगर ये लड़ाई मेरी और तेरी होती, ये दुश्मनी मेरी और तेरी होती तो तुझे बख्श देने से कोई ना रोक सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा,
مگر تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے مذہب کا دشمن تھا، خدا کی قسم میں تجھے بخش نہیں سکتا، تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے، کل کا سورج اسے زندہ نہ دیکھے۔ رات کو ہی عقیدر بن عبد الملک کا سر قلم کر دیا گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاد رضی اللہ عنہ بن غلم کو بلایا اور اسے بتایا کہ اب وہ اپنی سپاہ کا خود مختار سالار نہیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ نے ایاد رضی اللہ عنہ کی سپاہ اپنی کمان میں لے لی۔ اب لڑائی قلعے کے باہر ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، اتنے مضبوط قلعے پر وقت اور طاقت خرچ کرنا محض بیکار ہوگا، پہلے اس دشمن کو ختم کرنا ہے جو قلعے کے باہر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام سپاہ کو ترتیب میں کیا۔ ایاد رضی اللہ عنہ کی سپاہ میں جو مجاہدین نوجوان اور جوان تھے انہیں الگ کر کے اس طرف بھیج دیا جدھر ایک راستہ عرب کی سمت جاتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان جوانوں سے کہا کہ دشمن ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے زندہ نہ نکلنے دیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دستے اپنی زیر کمان لے کر ایک عیسائی سردار جودی بن ربیہ کے مقابل رکھے اور ایاد رضی اللہ عنہ کو کچھ دستے دے کر دشمن کے دو سرداروں ابن حدرجان اور الائہم کے دستوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اپنے دونوں سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو حسب معمول پہلوؤں پر رکھا۔ عیسائی اور بت پرست سالار قلعے کے اندر سے بھی فوج کی خاصی نفری باہر لے آئے۔ اس طرح ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی چال چلی جس سے دشمن پریشان ہو گیا۔ چال یہ چلی کہ ذرا بھی حرکت نہ کی۔ دشمن اس انتظار میں تھا کہ مسلمان حملے میں پہل کریں گے، لیکن مسلمان تو جیسے بت بن گئے تھے۔ عیسائی سردار لڑائی کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بہت سارا وقت گزر گیا اور مسلمانوں نے دشمن کی للکار کا بھی جواب نہ دیا تو دشمن نے ایاد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حلہ بول دیا۔ اس کے ساتھ ہی جودی نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو جو ہدایات دے رکھی تھی ان کے مطابق مجاہدین کے دستوں میں دشمن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دشمن اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ جب دشمن کے سپاہی مسلمانوں کی صفوں میں آئے تو مسلمانوں نے انہیں راستہ دے دیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے گھونسا کسی کو مارو اور وہ آگے سے ہٹ جائے۔ فوراً ہی عیسائیوں اور بت پرستوں کو احساس ہو گیا کہ وہ تو مسلمانوں کے پھندے میں آ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محافظوں کے ساتھ عیسائیوں اور بت پرستوں کے سب سے بڑے سالار جودی بن ربیہ کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے خاندان کے چند ایک نوجوان اس کے ساتھ تھے، وہ تو کٹ گئے اور جودی کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھا تھا جو دشمن کے لیے پھندا تھا۔ دشمن کے سپاہی جدھر کو بھاگتے تھے ادھر مسلمانوں کی تلواریں اور برچھیاں ان کا راستہ روکتی تھی۔ آخر وہ قلعے کی طرف بھاگے مگر دروازہ بند تھا۔ مسلمان اوپر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے سامنے عیسائیوں اور بت پرستوں کی لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایک دروازہ اور بھی تھا۔ اپنے آدمیوں کو پناہ میں لینے کے لیے قلعے والوں نے دروازہ کھول دیا۔ عیسائی اور بت پرست بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے، لیکن مسلمان تو جیسے ان کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دشمن کا ایک آدمی اندر جاتا تو دو مسلمان اس کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے۔ عیسائیوں اور بت پرستوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ لڑائی نہیں تھی، وہ عیسائیوں اور بت پرستوں کا قتل عام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ اگست 633 کے آخری جمادی الاخر 12 ہجری کے وسط کے دن تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جودی بن ربیہ اور اس کے تمام ساتھی سالاروں اور سرداروں کو سزائے موت دے دی تھی۔ دومت الجندل مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اسلام دشمن طاقتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ایران کے آتش پرستوں کو جس طرح اسلام کے علم برداروں نے شکست پہ شکست اور جتنا جانی نقصان انہیں پہنچایا تھا اتنا کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہاں صرف آتش پرست نہیں تھے، تمام غیر مسلم قبیلے جن میں اکثریت عربی عیسائی کی تھی ان کے ساتھ تھے۔ آتش پرستوں نے اب ان قبیلوں کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا جیسا مہران بن بہرام نے عین التمر میں کیا تھا۔ آتش پرستوں کے سالار میدان جنگ سے بھاگ بھاگ کر مدائن میں اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے نامور سالار بہمن جازویہ نے جب مہران بن بہرام کو اپنی فوج کے ساتھ واپس آتے دیکھا تو اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مت گھبرا بہمن، مہران نے اسے کہا تھا، دل چھوٹا نہ کر، آخر فتح ہماری ہوگی۔ میں شکست کھا کر نہیں آیا، شکست بدوی قبیلوں کو ہوئی ہے اور تو لڑے بغیر واپس آ گیا ہے۔ سالار بہمن جازویہ نے کہا تھا، تو اتنا بڑا شہر اپنے دشمن کی جھولی میں ڈال آیا ہے، تو خوش قسمت ہے کہ تجھے یہاں سزا دینے والا کوئی نہیں۔ سزا دینے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانشینی پر ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں۔ بہمن،
مہران نے تنزیہ لہجے میں کہا، کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے؟ کیا تو مسلمانوں سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں؟ اگر تو میدان میں جم جاتا تو آج مدینہ والے یوں ہمارے سر پر نہ آ بیٹھتے۔ شکستوں کی ابتدا تجھ سے ہوئی۔ میری تعریف کر کہ میں اپنے لشکر کو بچا لے آیا ہوں۔ میں اسی لشکر سے مسلمانوں کو شکست دوں گا۔ مدائن میں اس وقت جو لشکر جمع ہو چکا ہے اسے ہم ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت مدائن میں فارس کے جتنے بھی نامور سالار تھے وہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر آئے تھے۔ انہوں نے اسے ذاتی مسئلہ بنا لیا تھا، ورنہ وہاں حکم دینے والا کوئی نہ تھا۔ حکم دینے والے شاہی خاندان کے افراد تھے جو تخت کی وراثت کے لیے جوڑ توڑ میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سالاروں کو بھی اپنی سازشوں میں استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن سالار فارس کی شہنشاہی کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ چند ایک سالار ہی تھے جنہوں نے مدائن کا بھرم رکھا ہوا تھا، ورنہ کسرا کی بنیادیں ہل چکی تھیں اور یہ عمارت زمین بوس ہوا چاہتی تھی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدائن سے کم و بیش 400 میل دور دومت الجندل میں تھے۔ آتش پرستوں اور عیسائیوں کو ابھی معلوم نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ عین التمر میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دراصل ہیرا واپس آنا تھا۔ ایک تو وہ مفتوحہ علاقوں کے انتظامات وغیرہ کو بہتر بنانا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ فوج کو کچھ آرام دینا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ فوج کو اثر نو منظم کرنا تھا۔ ایک تو یہ مجاہدین تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے آ کر لڑتے تھے، دوسرے مجاہدین وہ تھے جو دشمن کے مختلف شہروں میں بہروپ دھار کر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وہ جاسوس تھے، وہ ہر لمحہ جان کے خطرے میں رہتے تھے۔ وہ دشمن کی نقل و حرکت اور عزائم معلوم کرتے اور پیچھے اطلاع بھجواتے یا خود اطلاع لے کر آتے تھے۔ تاریخ میں ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ ان میں سے بعض پکڑ لیے گئے اور دشمن کے جلادوں کے حوالے ہوئے۔ ان جاسوسوں کی بروقت اطلاعوں پر خالد رضی اللہ عنہ کئی بار دشمن کے اچانک حملے اور شکست سے بچے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل میں تھے تو مفتوحہ علاقوں کے لیے ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ مدائن پر کسرا کی شکست اور زوال کی سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کسرا کی اس تلوار پر زنگ لگ چکا تھا جس کا خوف بڑی دور تک پہنچا ہوا تھا، مگر 2-4 سالار تھے جو اس ڈوبتی کشتی کو طوفان سے نکال لے جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ان حالات میں ایک گھوڑا مدائن میں داخل ہوا اور بہمن جازویہ تک پہنچا۔ اب اور کیا بری خبر رہ گئی تھی جو تو لایا ہے؟ بہمن نے پوچھا۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ کیا مسلمانوں کا لشکر مدائن کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں، اس آدمی نے کہا، مسلمانوں کا لشکر چلا گیا ہے۔ چلا گیا ہے؟ بہمن جازویہ نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تو ان لشکریوں میں سے معلوم ہوتا ہے جنہیں مسلمانوں کی دہشت نے پاگل پن تک پہنچا دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا تیرے جرم کی سزا موت ہے؟ یہ آدمی گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ اس کی اطلاع پر بہمن جازویہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے اس آدمی کو اندر لے جا کر عزت سے بٹھانے کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ سزائے موت کا نام سنتے ہی اس آدمی نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور تیزی سے آگے ہو کر سالار بہمن جازویہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں عین التمر سے آیا ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی ملتجی آواز میں کہا۔ بے شک میں شکست کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن ان میں سے بھی ہوں جو شکست کو فتح میں بدلنا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ بات سن لیں جو میں بتانے آیا ہوں، پھر میرا سر کاٹ دینا، لیکن میری بات کو ٹالو گے تو یہ نہ بھولنا کہ تم میں سے کسی کا بھی سر مسلمانوں کے ہاتھوں سلامت نہیں رہے گا۔ بول، جلدی بول، بہمن نے کہا۔ کیا بات ہے جو مجھے اتنی دور سے سنانے آیا ہے؟ بہمن جازویہ کی ایک بیٹی جو جوان تھی ایک آدمی کو اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر قریب آ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے اس کا باپ شکست کھا کر آیا ہے وہ غصے سے بھرا رہتا ہے اور سزائے موت کے سوا اور کوئی بات نہیں کرتا۔ لڑکی تماشا دیکھنے آئی تھی کہ اس کا باپ آج ایک اور سپاہی کو جلاد کے حوالے کرے گا۔ خالد عراق سے چلا گیا ہے، عین التمر سے آئے ہوئے آدمی نے کہا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے شمشیر بن قیس نے بھیجا ہے، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سالار خالد نے عین التمر پر قبضہ کر کے وہیں کے سرکردہ افراد کو عمال مقرر کر دیا ہے۔ اس کا اور باقی سب حملہ آور مسلمانوں کا سلوک مقامی لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے کہ سب ان کے وفادار ہو گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں خود دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی فوج اچانک عین التمر سے نکل گئی۔ زرتشت کی قسم، بہمن جازویہ نے کہا۔ خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ میں پوری خبر لایا ہوں سالار، اس آدمی نے کہا۔ عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دومت الجندل چلا گیا ہے جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس وقت اپنے مفتوحہ علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جازویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔
बहमन को मालूम था कि दौमत जंदल कितनी दूर है और वहाँ तक पहुँचने और वापस आने में कितना वक्त लगता है। तुम वापस चले जाओ। बहमन जाज़विया ने उस आदमी से कहा, और शमशीर बिन कैस से कहना कि इतना बड़ा इनाम तुम्हारे नाम लिख दिया गया है जिसे तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। एक आदमी तुम्हारे पास ताजिर के रूप में आएगा, उसके साथ तुम्हारी बात होगी, वो तुम्हारा साइल होगा। हम बहुत जल्द हमले के लिए आ रहे हैं, अंदर से दरवाजे खोलना तुम्हारा काम होगा। क्या हो गया है मोहतरम बाप? बहमन की बेटी ने ऐनो तिमर के सवाल के जाने के बाद बहमन से पूछा, मुसलमान कहाँ चले गए हैं? ओ मेरी प्यारी बेटी। बहमन ने बेटी को फरते मुसर्रत से गले लगा लिया और पुरजोश और पुरअज़्म आवाज में बोला, मुसलमान वहीं चले गए हैं जहां से आए थे। मैंने कहा था कि वो मदाइन तक पहुंचने की जरूरत नहीं करेंगे। उन्होंने जो फतह हासिल करनी थी वो कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। अब मैं अपनी बेटी को मुसलमानों की लाशें दिखाऊंगा। कब? बेटी ने बच्चों के से इश्तियाक से पूछा। मुझे खालिद की लाश दिखाना मोहतरम पितर। यहाँ सब कहते हैं कि वो इंसानों के रूप में आया हुआ जिन है। बहमन जाज़विया ने बड़ी जोर का कहकहा लगाया। बहमन जाज़विया का ये फातिहाना और तंजिया कहकहा पहले किसरा के महलात में पहुंचा, वहां से सालारों तक गया, फिर मदाइन की हजीमत खुर्दा फौज ने सुना और फिर ये अहकाम और हिदायत की सूरत इख्तियार कर गया। बहमन जाज़विया की बेटी ने अपनी तमाम सहेलियों और शाही महल की औरतों को और जिसके साथ भी उसने बात की ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें खालिद की लाश दिखाऊंगी। खालिद की लाश? तकरीबन हर लड़की और हर औरत का रद्द-ए-अमल यही था। कहते हैं खालिद को कोई नहीं मार सकता, वो इंसान नहीं, उसे देखकर फौजें भाग जाती हैं। शाही अस्तबल में जहां शाही खानदान और सालारों के घोड़े होते थे, गहमा गहमी बढ़ गई थी। साइसों को हुक्म मिला था कि घोड़े में जरा सा भी नक्स या कमजोरी देखें तो उसे ठीक करें या उसे अलग कर दें। बहमन जाज़विया की बेटी इस तरह हर तरफ फुदकती फिर रही थी जिस तरह ईद का चांद देखकर नए कपड़ों की खुशी में नाचते कूदते हैं। वो अस्तबल में गई। वहाँ उसके बाप के घोड़ों के साथ उसका अपना घोड़ा भी था जो बाप ने उसे तोहफे के तौर पर दिया था। मेरे घोड़े का बहुत सारा ख्याल रखना, उसने अपने खानदान के साइस से कहा। एक उधेड़ उम्र साइस जो 3-4 महीने पहले उस अस्तबल में आया था, दौड़ा आया और लड़की से पूछा कि अपनी फौज कहीं जा रही है या मदीना के लश्कर के हमले का खतरा है। अब तुम मदीना वालों की लाशें देखोगे, लड़की ने कहा। बाकी घोड़ों के साइस भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। वो भी ताज़ा खबर सुनना चाहते थे। लड़की ने उन्हें बताया कि खालिद थोड़ी सी फौज पीछे छोड़कर ज्यादातर फौज अपने साथ ले गया है और वो इराक से दूर निकल गया है। ये तमाम तर इलाका जो खालिद ने फारस वालों से छीना था, इराक था। लड़की ने साइसों को बताया कि अब अपनी फौज पहले ऐनो तिमर पर, फिर दूसरे शहरों पर हमला करके उन्हें दोबारा अपने कब्जे में ले लेगी। अगर खालिद वापस आया भी तो उसे अपनी शिकस्त और मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा? उधेड़ उम्र साइस ने मसरूर से लहजे में पूछा। जिंदा या मुर्दा? बहमन की बेटी ने कहा। उसे मदाइन लाया जाएगा। अगर जिंदा हुआ तो तुम उसका सर कलम होता देखोगे। 3-4 रोज गुजरे तो ये उधेड़ उम्र साइस लापता हो गया। उसे सब ईसाई अरब समझते थे। हंसमुख और मिलनसार आदमी था। सिर्फ एक साइस ने उसके मुतालिक बताया था कि वो कहता था कि वो अपने कबीले में वापस जाना चाहता है जहाँ वो कबीले की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। वो अपने खानदान के उन मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहता था जो 2 जंगों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। जिस वक्त शाही अस्तबल में उस साइस की गैर हाजिरी के मुतालिक बातें हो रही थी, उस वक्त वो मदाइन से दूर निकल गया था। मदाइन से वो शाम को निकला था जब शहर के दरवाजे अभी खुले थे। उसके पास अपना घोड़ा था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो ईसाई नहीं मुसलमान था और वो उसी इलाके का रहने वाला था जिस पर ईरान के आतिश परस्तों का कब्जा था। वो मुसन्ना बिन हारिसा का छापा मार जासूस था। उसने मदाइन में जाकर शाही अस्तबल की नौकरी हासिल कर ली थी। बहमन जाज़विया की बेटी ने उसे इराक से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके लश्कर की रवानगी और मदाइन के सालारों के अज़ाइम की तफसील सुनाई तो वो उसी शाम मदाइन से निकल आया। ये इत्तला बहुत कीमती थी। सूरज ने गुरूब होकर जब उसके और मदाइन की शहर पनाह के दरमियान स्याह पर्दा डाल दिया तो उस मुसलमान जासूस ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसकी मंजिल अंबार थी जहां तक वो उड़कर पहुंचने की कोशिश में था। जहां घोड़ा थकता महसूस होता वो उसकी रफ्तार कम कर देता। सिर्फ एक जगह उसने घोड़े को पानी पिलाया। अगले रोज का सूरज उफक से उठ आया था जब वो अंबार में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो सालार ज़बरकान बिन बद्र के पास बैठा हुआ था। वो हाँप रहा था। उसने हाँपते हुए सुनाया कि मदाइन में क्या हो रहा है। मैं उसी रोज आ जाता जिस रोज मुझे बहमन की बेटी से ये खबर मिली थी, उसने सालार ज़बरकान से कहा। लेकिन मैं वहाँ 3 दिन ये देखने के लिए रुका रहा कि दुश्मन क्या क्या तैयारियां कर रहा है और वो सबसे पहले कहाँ हमला करेगा। इस जासूस ने, जिसे तारीख ने एक जासूस लिखा है, मदीना की फौज के सालार ज़बरकान बिन बद्र को जो तफसीली रिपोर्ट दी वो तारीख का हिस्सा है और तकरीबन हर मौर्रिख ने बयान किया है।
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो जब ऐन तिमर से अयाद रज़ी अल्लाह अन्हो बिन गनिम की मदद के लिए दौमत जंदल के लिए रवाना हुए तो ऐन तिमर से एक ईसाई अरब ने मदाइन इत्तला भेज दी कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो इराक से चले गए हैं। उनकी मंजिल दौमत जंदल बताई गई। इससे मदाइन के तजर्बाकार सालार बहमन जाज़विया ने ये राय कायम की कि मुसलमान तख्तो ताराज और लूट मार करने आए थे और अपने कुछ दस्ते बराए नाम कब्जा बरकरार रखने के लिए पीछे छोड़कर चले गए और ये दस्ते जरा से दबाव से भाग उठेंगे। उस जमाने में अक्सर यूं होता था कि कोई बादशाह बहुत बड़ी फौज तैयार करके तूफान की मानंद यके बाद दीगरे कई मुल्कों पर चढ़ाई करता और कत्ले आम और लूट मार करता अपने पीछे खंडर और लाशों के अंबार छोड़ जाता था। वो किसी भी मुल्क पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा नहीं करता था। मदाइन के महल में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के कूच के मुताल्लिक यही राय कायम की गई, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने इराक में फारस के जो मकबूजा शहर और बड़े किले फतह किए थे वहाँ वो एक एक सालार और कुछ दस्ते छोड़ गए थे। ये सूरत हाल किसरा के सालारों को कुछ परेशान कर रही थी। फौज को मदाइन से निकालो और हमले पे हमला करो। किसरा के दरबार से हुक्म जारी हुआ। हम तैयार हैं, शेरजाद ने कहा, जो हाकिम साबात था और अंबार से मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागा था। हम बिल्कुल तैयार हैं, मेहरान बिन बहराम ने कहा, जो ऐन तिमर का भगोड़ा था। मगर लश्कर तैयार नहीं, बहमन जाज़विया ने कहा, जो तजर्बाकार सालार था। शिकस्त तो उसने भी खाई थी, लेकिन उसने कुछ तजर्बा हासिल किया था। क्या कह रहे हो बहमन? किसरा के उस वक्त के जानशीन ने कहा, क्या हमने इस लश्कर को इसलिए पाला था कि शिकस्त खाकर हमारे पास भाग आए और हम इन सिपाहियों और कमानदारों को सांडों की तरह पालते रहें? अगर उन सिपाहियों और कमानदारों को सजा देनी है तो आज ही कूच का हुक्म दे दें। बहमन जाज़विया ने कहा, अपने लश्कर की हालत मुझसे सुने। उसने अपने लश्कर की जो कैफियत बयान की वो मौरखों और बाद के जंगी मुबस्सिरों के अल्फाज में यूं थी कि फारस की इस जंगी जीत के पुराने और तजर्बाकार सिपाहियों की पेशतर नफरी मुसलमानों के हाथों 4-5 जंगों में मारी जा चुकी थी या जिस्मानी लिहाज से माजूर बल्कि अपाहज हो चुकी थी। खासी तादाद जंगी कैदी थी और लश्कर के जो सिपाही और उनके कमांडर बच गए थे वो ज़हनी माजूर नजर आते थे। 3 अल्फाज मदीना, खालिद बिन वलीद और मुसलमान उनके लिए खौफ का बायस बन गए थे। वो फौरी तौर पर मैदान जंग में जाने और लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। उनका जोश और जज्बा बुरी तरह मजरूह हुआ था। घोड़ों की भी कमी वाक़ हो गई थी। बहमन जाज़विया ने दरबार खास में बताया कि जो ईसाई कबीले उनके इत्तेहादी बनकर लड़े थे उनकी भी यही कैफियत है। मेहरान बिन बहरान ने उन्हें ऐन तिमर में जो धोखा दिया था उसकी वजह से वो फारस वालों के साथ मिलने से इनकार कर सकते थे, फिर भी उन्हें साथ मिला लिया जाएगा। बहमन जाज़विया ने कहा, लेकिन अपने लश्कर के लिए हजारहा जवान आदमियों की भर्ती की जरूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। उन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने उनकी शहनशाही को, उनकी गैरत को और उनके मजहब को ललकारा है। अगर उन्होंने मुसलमानों को सफाए हस्ती से मिटा ना दिया तो उन पर ज़रतश्त का कहर नाजिल होगा। उनकी जवान और कमारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियां बना लेंगे। इतने ज्यादा लश्कर की क्या जरूरत है? मेहरान बिन बहराम ने कहा, इतला तो ये मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर जगह और हर किले में हमारे अपने आदमी अंदर मौजूद हैं। शेरजाद ने कहा, इस वक्त वो मुसलमानों की मुलाजिमत में हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा कि फारस की फौज ने शहर का मुहासरा किया है तो वो अंदर से किले के दरवाजे खोल देंगे। बहमन जाज़विया ने शेरजाद की बात पूरी करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इत्तलाएं मिलती रहती हैं मुसलमान अपने मफ्तू और महकुम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि उनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं करता। अगर फातेह अपने मफ्तू की जवान और हसीन बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे और उसकी इज्जत और अम्वाल को तहफ्फुज दे तो मफ्तू ऐसे फातेह के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। ना सही, शाही खानदान के किसी फर्द ने कहा, इतने ज्यादा लश्कर की फिर भी जरूरत नहीं। ये उन सालारों से पूछें जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। बहमन जाज़विया ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं उतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई खतरा मूल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखें कि मुसलमान किला बंद होंगे। उन्हें जेर करने के लिए हमारे पास 10 गुना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई को फैसला कुन बनाना चाहता हूँ। ये भी ख्याल रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। मुसलमान जहां मुकाबले में जम गए वहां हमें महीनों तक बांध लेंगे। इस अरसे में खालिद अपने लश्कर के साथ वापस आ सकता है। उसके वापस आ जाने से सूरत हाल बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर हमारे लश्कर की नफरी कम हुई तो इस जंग का पासा पलट सकता है। हम लश्कर तैयार करके उसे कई हिस्सों में तकसीम करेंगे और एक ही वक्त हर जगह हमला करेंगे। क्या खालिद के खात्मे का कोई इंतजाम नहीं हो सकता? किसरा के जानशीन ने पूछा। ये इंतजाम भी मेरे पेश नजर है, बहमन जाज़विया ने कहा। देखभाल के लिए मैं तेज रफ्तार घुड़सवार हर तरफ फैला दूंगा। खालिद जिधर से भी आएगा मुझे इत्तला मिल जाएगी। मैं उसे इराक से दूर रोक लूंगा। बहमन जाज़विया को वसी इख्तियारात मिल गए। उसने अपने लश्कर में उन सिपाहियों को ज्यादा तरजीह दी जो मुसलमानों से लड़ चुके थे। इसके साथ ही नई भर्ती शुरू कर दी।
नौजवानों को ऐसा भड़काया गया कि वो हथियारों और घोड़ों समेत लश्कर में आने लगे। ईसाइयों को ज्यादा मरात देकर फौज में शामिल कर लिया गया। ईसाई कबीलों के सरदारों को मदाइन बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर को इराक से निकाल कर ले गए हैं और जो मुसलमान फौज पीछे रह गई है उसे यहीं खत्म करना है और जिंदा बचे रहने वाले मुसलमानों को सहरा में भटक भटक कर मरने के लिए छोड़ देना है। बनी तगलब से अब ये तवक्को न रखो कि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ईसाई कबीले बनी तगलब के एक सरदार ने फारस के सालारों से कहा, हम एक बार फिर वो धोखा नहीं खाना चाहते जो एक बार खा चुके हैं। ऐनो तिमर से मेहरान बिन बहराम अपनी सारी फौज लेकर ना भागता तो मुसलमान वहीं खत्म हो जाते। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमें मुसलमानों से अपने सरदार अका बिन अबी अका के खून का इंतकाम लेना है। हम तुम्हारी मदद और तुम्हारा साथ लिए बगैर मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। क्या तुम अपनी लड़ाई लड़ोगे? बहमन जाज़विया ने पूछा। क्या ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान हम दोनों को अलग अलग शिकस्त दे दें? लड़ेंगे तुम्हारे दोष बदोश ही, बनी तगलब के सरदार ने कहा। मेरी अक्ल मेरे काबू में है। हमारा दुश्मन मुश्तरक है। हम तुम्हारे साथ होंगे लेकिन तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें खालिद का सर चाहिए। खालिद यहाँ नहीं है, मेहरान बिन बहराम ने कहा। वो जा चुका है। जहाँ कहीं भी है, ईसाई सरदार ने कहा। जिंदा तो है। हम पहले उनके उन दस्तों को खत्म करेंगे जो यहाँ हैं। फिर हम खालिद बिन वलीद के पीछे जाएंगे। वो खुद आ जाएगा। वो दोस्तों की मदद को जरूर आएगा, लेकिन यहाँ मौत उसकी मुंतजर होगी। ये मुसलमान जासूस मदाइन में ईसाई बनकर शाही अस्तबल में नौकरी करता रहा था, इसलिए वो ईसाइयों में घुल मिल गया था। उसने सालार ज़बरकान बिन बदर को बताया कि आतिश परस्तों की निस्बत ईसाई कबीले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज्यादा दुश्मन बने हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फारस के सालारों से कहा कि वो पीछे रहें। मुसलमानों पर पहला वार ईसाई कबीले बनी तगलब, नमर और अयाद ही करेंगे। सालार ज़बरकान बिन बदर ने मदाइन की ये रिपोर्ट सुनी और उसी वक्त 2 कासिद बुलाए। उन्हें कहा कि 2 बेहतरीन घोड़े ले लें और उड़ते हुए दोमतुल जंदल पहुंचे। ज़बरकान ने उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम ज़बानी पैगाम दिया और सालार आला इब्ने वलीद से ये भी कहना कि जब तक अंबार में आखिरी मुसलमान की सांसें चल रही होंगी दुश्मन शहर के अंदर नहीं आ सकेगा। ज़बरकान बिन बदर ने कासिदों से कहा, तू आ जाएगा तो हमें सहूलत हो जाएगी, नहीं आ सकोगे तो वो अल्लाह हमारे साथ है जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम अपने सीनों में लिए यहाँ तक आए हैं। और इब्ने वलीद से कहना कि दोमत जंदल की सूरत हाल तुझे आने देती है तो आ, और अगर तू वहाँ मुश्किल में फंसा हुआ है तो हमें अल्लाह के सुपुर्द कर। हम इसी तरह लड़ेंगे जिस तरह तेरी शमशीर के साए तरे लड़ते हैं। उन कासिदों को रवाना करके सालार ज़बरकान ने चंद एक और कासिदों को बुलाया और हर एक को उसकी मंजिल बताई। उन कासिदों को उन शहरों में जाना और वहाँ के सालारों को बताना था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की गैर हाजिरी से आतिश परस्तों ने क्या तासुर लिया है और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। पैगाम में ज़बरकान ने यह भी कहा कि उसने दोमतुल जंदल को कासिद भेज दिया है। अगर वहाँ से मदद नहीं आई तो हम एक दूसरे की मदद को पहुँचने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दुश्मन के मुकाबले में नफरी पहले ही थोड़ी थी, वो भी बिखरी हुई थी। इस सूरत में कि दुश्मन बैक वक्त उन तमाम शहरों को जिन पर मुसलमानों का कब्जा था मुहासरे में ले लेता तो मुसलमान एक दूसरे की मदद को नहीं पहुँच सकते थे। दोनों तरफ बेपनाह सरगर्मी शुरू हो गई। ईसाई कबीलों के सरदारों ने बस्ती बस्ती जाकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो उन छोटे छोटे कबीलों को भी अपने साथ मिला रहे थे जो ईसाई नहीं थे। वो बुत परस्त थे। ईसाइयों की जवान लड़कियां भी गैर मुस्लिम बस्तियों में चली गईं। वो औरतों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती थीं कि वो अपने मर्दों को, जवान भाइयों और बेटों को बाहर निकालें वरना तमाम जवान लड़कियों को मुसलमान अपने साथ ले जाकर लौंडियां बना लेंगे। ऐसे नारे भी उन लड़कियों ने लगाए कि हम मुसलमानों की लौंडियां बनने जा रही हैं। और दूसरा नारा जो बस्ती में लग रहा था वो ये था कि अपने मकतूलों के इंतकाम का वक्त आ गया है, बाहर आओ और इंतकाम लो। उधर मदाइन में फारस की लश्कर की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब लश्कर में शामिल होने वालों में ज्यादातर नौजवानों की थी जो जोश से फटे जा रहे थे। उन्हें मैदान जंग में लड़ने की तरबियत दी जा रही थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तेगजनी और नेजाबाजी तो वो जानते थे, इनमें उन्हें मजीद ताक दिया जा रहा था। बहमन जाज़विया तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। वो खुद मशकों की तरबियत और मशकों की निगरानी करता था। उसके साथी सालार उसे कहते कि हमला जल्दी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता था। कहता था कि खालिद वापस नहीं आएगा। अगर उसे वापस आना ही हुआ तो वो लश्कर के साथ उस वक्त यहाँ पहुंचेगा जब इराक की जमीन पर खड़ा होने के लिए उसे एक बालिश्त भर भी जमीन नहीं मिलेगी। मुसलमान जिन शहरों पर काबिज थे वहाँ की सरगर्मी अपनी नौयत की थी। हर शहर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। उन्होंने कम तादाद से किलों के दिफा की मशकें शुरू कर दी थी। लाखों के हिसाब से तीर और फेंकने वाले बर्छे तैयार हो रहे थे। सालारों ने मुजाहिदीन का एक एक छापामार जैश तैयार कर लिया था। उन्हें ज्यादा वक्त किलों के बाहर गुजारना और आम रास्तों से दूर रहना था।
ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر چھاپے اور شبخون مارتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو کے بھائی قیقاع بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہیرا میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف ہیرا کے دفاع تک محدود نہیں تھی، عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اس علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایت بھیج دی تھی۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت الجندل سے خالد رضی اللہ عنہ اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کریں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ قیقاع نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ قیقاع کا اپنا جاسوسی نظام تھا۔ اس کے ذریعے قیقاع کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھیں، ایک حسید اور دوسری خنافس۔ یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ قیقاع نے اپنے ایک دستے کو حسید اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں، شبخون بھی ماریں۔ جب یہ دونوں دستے اس مقام پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا، وعلیکم السلام۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟